Good evening, everyone. I am Kiran Khatri, professor at the MBA program of LJU, along with Mansi Gader, first year management student at LJ. LJ has an illustrious alumni base, and alumni are a significant part of the LJ family. As a member of LJ family, it gives me tremendous joy and pride at the moment to begin the event Alumni Mantras, which is online series based on interaction between the students of LJ and the esteemed alumni of LJMA. It is indeed my great pleasure to welcome amongst us the alumni of this prestigious institution. Not only it is a moment of happiness and nostalgia for us, but also an opportunity to reflect on our learnings and achievements. Our alumni have established themselves as successful individuals in almost every field in their lives, and we could not be any prouder. Today, we are going to meet someone who has turned his passion for fitness into a flourishing business. He is also a certified personal trainer from American College of Sports and Medicine and a specialist in fitness and nutrition. He is the owner of FitBricks Cafe, which has 7 juice bars across Ahmedabad and a cafe in Paladi, which is trending #1 on Zomato. Apart from all this, he is currently managing Life Fitness Gym. So it is our great pleasure to welcome Mr. Shahad Mansoori, founder of FitBricks from 2011-13 batch. Welcome, Shahad. Hi, ma'am. How are you? All good. So Shahad, Mansi will Hi, be Mansi. asking. Yes, so Mansi will be asking some Yeah, ma'am. questions to you. So Mansi, over to you. Sure. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you so much, ma'am, for this wonderful introduction. First of all, I would like to thank LG Institute of Management Studies, the faculties, and Kiran, ma'am, for giving me such a wonderful opportunity so that we can interact with our alumni and to get to know their stories, how they have started the journey, how they have explored it, and we can get some of their successful mantras so that we can apply it to our life too. So welcome, sir, again. Thank you so much. Thank you so much, Mansi. So, sir, my first question for you is, can you tell us about your career journey since college and about your work today? I joined LJ MBA in 2011-13 batch. Okay, I passed out in 2013. उसके बाद suddenly my father has owned transportation company. So करियर में मेरे को पहले से ही ऐसा था कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ज्वाइन करूंगा, बट थोड़े दिन जाने के बाद मजा नहीं आया, तो फिर उसके बाद कैंपस से मेरे को एक प्लेसमेंट मिला आईटी कंपनी में. उसके बाद 2 to 3 years मैंने आईटी कंपनी में ही एक जॉब किया, पर मेरा पैशन था फिटनेस, तो मेरे को फिटनेस में ही जाना था. 2016 very best gym in the town called Life Fitness, and the founder called me up और एक आध मीटिंग हुआ हमारा, और उन्होंने मेरे को सामने से फिटनेस कैफे के लिए अप्रोच किया. तो बस तब से ही मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ऐसे करके मेरे 11 कैफेज मेरे हो गए. ठीक है, उसके बाद मेरे टीम ऐसे मतलब 27 to 28 लोगों की टीम होती गई. फिर मैंने चाहा कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में भी अप्लाई करूं. ठीक है, तो उसके बाद मैंने ACSM सर्टिफिकेशन किया था सिंगापुर से. उसके बाद धीरे धीरे मैं न्यूट्रिशन बनता गया, और फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट भी मेरे को मिल गया था लाइफ फिटनेस का. तो जर्नी मतलब अप्स एंड डाउन भी काफी थे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, पर जर्नी मेरी थोड़ी स्मूथ रही है ऐसा. Yeah, okay, sir. So, sir, what habits help you to make successful? Like you are holding so many cafes. So, what habits particularly help you to make such successful entrepreneur? ऑन प्राइमरी लेवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 11 कब हो गया पता नहीं चला था मेरे को, बट व्हेन वी फेस कोविड वाला सिचुएशन इन 2020, तब मेरे 11 कैफेज थे. उसके बाद मेरा टीम भी बड़ा था, बहुत सारी चीजें थी मेरे को जो मेरे को मैनेज करनी थी.
लाइक जिम का एक मैनेजमेंट था, साथ में मैं साइमल्टेनियसली मैं 8 से 10 लोगों को दिन में ट्रेन करता हूँ, ठीक है। फिर कितने सारे लोग मेरे को कंसल्ट करते हैं डाइट के लिए। तो मेरा आई आई वाज सो बिजी एट दैट टाइम, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। और जब कोविड आया तो फिर उसमें रिस्क बढ़ता गया। जैसे कोविड है तो 28 का स्टाफ था मेरा, तो वो होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उस हिसाब से फिर 11 to 7 गए। फेलियर आएगा आपकी कोई भी जर्नी में, फेलियर के बिना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। शायद आप भी आगे जाओगे, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा कहना यही है बस, जो आप एक बार रात को सोने जाओ तो दिल पे हाथ रख के सोच लो कि मैंने आज क्या किया है। आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या किया है और आप क्या करना चाहते हो आगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैंने कुछ नहीं किया तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया। आप अपना 100% दो, दैट्स इट। Yeah, definitely, sir. So considering today's business world, so how could you highlight your company's competitive advantage, or we can say, what makes it stand out of the crowd? सी इन रिगार्ड्स टू माय इंडस्ट्री, मतलब मैं फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा कि हाउ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जिम्स बहुत सारी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे गुजरात में 565 जिम्स है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो एक ऐसी बड़ी जिम जिसके एक्सपेंसेस बहुत सारे हाई है, बहुत रेंट्स भी बहुत हाई है, ठीक है। तो उसको होल्ड कर पाना मुश्किल तो बहुत है, पर अगेन अगर आप टेक्निकल नॉलेज आपका सही है इन रिगार्ड्स टू माय इंडस्ट्री, अगर अगर आपका टेक्निकल नॉलेज सही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है, या आप कैसे हाउ यू मोटिवेट योर क्लाइंट्स, और पेशेंस कितना है आप में, वो सब मैटर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, शायद बहुत सारे लोग आते होंगे यहाँ पे, मेरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते होंगे जो फैटी है या फिर ओवर वेटेड है या अंडर वेटेड है, वो आएंगे मेरे पास और मेरे को कंसल्ट करते हैं। एट द सेम टाइम जब मेरे अंदर एक टेक्निकल नॉलेज होगा, जब मैं आपको उनको समझा पाऊंगा, तभी मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। Yeah, Because in definitely, our sir. industry, in our industry, only result matters. या फॉर एन एग्जाम्पल, आप आए, आपका वेट बहुत ज्यादा है और 1 महीने के अंदर मैंने आपको कितना वेट लॉस करवाया, तो उस पर आपका एक इम्पैक्ट बन जाता है माइंड में। Yeah, right, sir. So sir, what is the favorite aspect of being an entrepreneur? हेलो, Yeah, sir, am I audible to you? यू देयर? Yes, sir. Am I audible? Mansi, if you can Yes, repeat yes. the question, just repeat the question. No, Yeah, maybe sure, sir. network, Yeah, sure, my sir. network is not very good. Yeah. So sir, I was asking that what is the favorite aspect of being an entrepreneur? Like you are holding your own business. So what is the most favorite part of that? See, अगर आप जॉब करोगे, नौकरी इज टर्म लाइक, इफ यू आर गुजराती, नौकरी नौकरी, राइट। तो तब से ही मेरे को दिमाग में आ गया था कि ये तो नहीं करना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर्स, बिन फालतू के प्रेशर्स आते ही रहते हैं आपको। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपका पैशन हो, ठीक है। आपका पैशन फॉर एन एग्जांपल ऐसा ही नहीं है कि जिम इंडस्ट्री, आपका पैशन शायद फाइनेंस में हो तो आप उसमें जाओ, पर आप कुछ अलग करो ऐसा। अगर 9 to 5 जॉब ही करनी है तो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा उसमें। वो शायद आप भी रिलेट करोगे मेरे से। Yeah, sir. But sir, majority of students, like they are having confusion that some of them are having like say they have to be entrepreneur, but apart from their if you talk about their family, that they consider like they are being from job background. So sir, how to manage that confusion or how to clear मानसी, that? व्हेन आई स्टार्टेड द फिटब्रिक्स, मैंने सिर्फ 56,000 से मेरा करियर स्टार्ट किया था। मेरी ये फिटब्रिक्स जो ब्रांड है वो मैंने 56,000 रुपीज से ही स्टार्ट किया था। अगर कितने लोग आप में सोचते होंगे कि नहीं मेरे को जॉब करनी है बिकॉज मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि
आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस होता है, पर उसके लिए आप लोग पहले से ही एक डिजाइन रेडी करते हो, उसका एक पिक्चर रेडी करते हो, उसमें आप दिखा देते हो कि भाई मेरे को 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। दैट डजेंट मैटर, आपको अगर करना ही है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना ही है, आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना ही है, तो ऐसे नहीं है कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से ही होगा, छोटे बिजनेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से बड़ा भी बन सकते हो आप। Yes, sir. This would be a great lesson for today's generation. Like if they want to pursue, they want to go for entrepreneur, so they can start with minimal amount of funding. In So, sir, today's- last question. Yes, sir. Please. इन टुडेज जनरेशन किसी भी स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ या किसी भी एम्प्लॉय से मिलता हूँ, एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को इतना पैसा चाहिए, पर उसके पीछे आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप रास्ता ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए से ही, अगर आप इतने ही कैपिटल से आप बिजनेस कर सकते हो। कितने कितने बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो और बड़ा बना सकते हो। Yes, definitely, sir. So, sir, my last question for today would be, what is your greatest achievement of to be proud you? Because, like, I know you would be having so many great achievements, but what is that utmost achievement that you can say, yeah, this would be my favorite and I'm proud of that? See, when I'm doing my bachelor's degree in NRBBA, at that time मेरा जर्नी कैसा था, मैं बहुत फैट था, बहुत फैटी था। लोग मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ ये मोटा है मोटा है मोटा है मोटा है। तब से ही मैंने सोच लिया था, और मैंने तभी मेरा वेट 46 kg लॉस कर लिया था, ठीक है, व्हेन आई एम थर्ड ईयर ऑफ BBA। तो तब से ही मतलब दैट वुड बी माय बिग अचीवमेंट। और जब मेरे को कॉल आया था लाइफ फिटनेस की ओर से, और भी 2-3 कॉल आए थे मेरे को, जो बड़ी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री थी, और दे ऑफर्ड मी द जॉब, और वो भी पोस्ट कोविड के टाइम, ठीक है, कि ये मेरी जिम का मैनेजमेंट करो, मेरी जिम का मैनेजमेंट करो। तो इट टेक्स 5 to 7 years आपको नाम बनाने में, तभी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, बट दिस वुड बी माय बेस्ट एंड बिग अचीवमेंट। Thank you so much, sir, for giving such wonderful answers patiently. And once again, thank you so much, sir, for your time to guide us, all the students over there. So once again, sir, thank you so much. Thank you so much, Over Mansi, to you, for ma'am. having me. Thank you so much. Thank you, sir. Sahad, I have one last question. So my question is, how has LJ helped you in your career journey? So we must have learned some lessons here while being in LJ. So how it has helped you to meet with the challenges in your business or to help in the growth of your business? What is the part LJ has played? I have to be very frank. LJ is turning point for me. आप ऐसा बोल सकते हो, मैं इतना खुला हुआ भी नहीं था जब LJ में मेरा फर्स्ट डे था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया है, बहुत सारे प्रोफेसर ने हेल्प किया है। आप ऐसे बात करो तो इन वेरी फर्स्ट सेमिस्टर आई फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद रीअसेसमेंट हुआ, उसके बाद मेरे को क्लीन शीट मिला कि मैं चारों 4 सब्जेक्ट में फिर से पास हुआ, ठीक है। तो फिर वहां से जर्नी, फॉर एन एग्जांपल, आई वाज पार्ट ऑफ एडवेंचर, आई वाज पार्ट ऑफ स्टूडेंट सेल्स। तो मेरे को तब बहुत कुछ, आई हैव लर्न अ लॉट एट दैट टाइम। मेरा एक्चुअल ग्रोथ मैम LJ से ही आया हुआ है, तो फिर मैं LJ को कभी नहीं भूल सकता। दैट्स व्हाई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड अगेन।